ناظرین السلام علیکم. خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر. ٹریفک شعور بیداری مہم زندہ آیا ہوں کا وزیر اعلیٰ نے کیا آغاز. چالانات سے گریز کا پولیس کو مشورہ, کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جائے گا. ریاستی ملازمین کو سنکرانتی کا تحفہ, 3% سے زائد گرانی الاؤنس کا اعلان. جیو جاری, ملازمین کے لیے 1 کروڑ روپے حادثاتی انشورنس کا منصوبہ. مسائل کی یکسوئی میری ذمہ داری, وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب. رجسٹریشن محکمے میں اہم اصلاحات پر عمل, جبراً اراضی قابضین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. محکمے رجسٹریشن آمدنی کا ذریعہ نہیں بلکہ خدمت کا مرکز بنے. کوکٹ پلی میں انٹیگریٹڈ رجسٹرار آفس کا سنگ بنیاد. تلنگانہ کے محکمہ جیل نے سال 2025 کی سالانہ رپورٹ کی پیش, زیر سماعت محروسین کی تعداد میں اضافہ. اور بورا بنڈا میں قتل کا سنسنی خیز واقعہ, بات چیت نہ کرنے پر خاتون کا قتل. حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے. ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو. اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج. 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں. شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے. ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے. VIP شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے. اسپیشل VIP نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے. حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا, تو انتظار کیسا, اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر. یہ آفر محدود مدت کے لیے. مینا, عرفات, مزدلفہ میں بہترین سروسز, 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے, AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں. عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس, پرانی حویلی, حیدرآباد. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. ضیاء انکلیو, QMax سفائر, ساجد ریزیڈینسی, QMax مسعود, جاوید انکلیو, فاطمہ ریزیڈینسی, اقبال ریزیڈینسی, MK ٹاورز, پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل, موسیٰ انکلیو, MSN ایزل ریزیڈینسی, سرین ہائٹس, دارالامن, دارالخیر, ڈیلائٹ سوٹ, اکبر انکلیو. 35% ڈاؤن پیمنٹ, بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, ٹولی چوکی, حیدرآباد. آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون ماون, آپ کا نیا گھر, آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر, وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر. اسکولز, ہاسپٹلز, شاپنگ مالز کے قریب. یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں, فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی, جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ. گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال, 4 لفٹوں کی سہولت, 24/7 سیکیورٹی, اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت. 40% ڈاؤن پیمنٹ, ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ. عزیز ماون ون, جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ, ٹولی چوکی, حیدرآباد. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو, ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن, جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں, ایک مثال ہے خوبصورتی کی, بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو, مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار, جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے. بائے جوہری, گولڈ, ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم, اپوزٹ انڈین بینک, جوہری روڈ, ٹورڈ 7 ٹومز, ٹولی چوکی, حیدرآباد.
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिंदा आया हूं उन्वान से रियासत में ट्रैफिक शऊर बेदारी का 1 माह तवील प्रोग्राम का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस के कमांड कंट्रोल सेंटर में आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में पुलिस से कहा वो अवाम पर चालानात मुसल्लत करने से गुरेज करें, बल्कि ट्रैफिक के शऊर को बेदार करने के लिए सरगर्म मुहिम चलाएं। वजीर आला ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो चालानात किए गए हैं उन पर कोई डिस्काउंट रियायत नहीं दी जाए। वजीर आला ने तजवीज़ पेश की कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को गाड़ी लेने वाले के बैंक अकाउंट से मरबूत किया जाए। अगर गाड़ी पर चालान होता है तो ये रकम उसके बैंक से कट कर ली जाएगी। इस सिलसिले में अहकामात भी जारी किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ट्रैफिक ड्यूटी डालने पर यह तासुर दिया जाता है कि ये एक पनिशमेंट यानी कि सज़ा है। इस तासुर को बदलने के लिए उन्होंने ट्रैफिक नज़म के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल रुतबे के अहदेदार को रोड सेफ्टी की जिम्मेदारी देंगे। वजीर आला ने कमसीन बच्चों को गाड़ियां चलाने देने, शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात को कम करना ज़रूरी है। हादसों की रोकथाम के साथ साथ ट्रैफिक के बहाव को भी मौसर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, डीजीपी शिवधर रेड्डी, पुलिस के कई सरकर्दा अहदेदार और समाज के मुख्तलिफ तबकात बशमूल स्कूल व कॉलेजेस के तलबा भी इस तकरीब में शरीक थे। वजीर आला ने जिंदा आया हूं के उन्वान पर अलामती पतंगों की रस्म इजरा भी अंजाम दी। లేదా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో బండ్లు నడిపే వాళ్ళని నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత పోలీసుల మీద ఉన్నది. వాళ్ళ మీద కఠినంగా కూడా వ్యవహరించాలి. స్పీడింగ్ తోని మీరు చలానాలు వేస్తున్నారు, కానీ సంవత్సరం అయిన తర్వాత డిస్కౌంట్స్ ప్రకటిస్తున్నారు. దానివల్ల ఎలాగూ తగ్గిస్తారు కదా, మళ్ళీ చూద్దాంలే అన్న వ్యవస్థ ఈరోజు ఒక సమస్యగా మారింది. అందుకే పోలీస్ సిబ్బందికి శాఖకు నేను సూచన చేస్తున్నా, ఈ చలాన్స్ వెయ్యడం అనేది వెయ్యకుంటేనే నియంత్రించి వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించాలి. తప్పని పరిస్థితిలో ఎవరి మీదైనా చలానా వేస్తే ఒక్క పైసా తగ్గించకండి. మూడవది, వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ తోని డైరెక్ట్గా డిపార్ట్మెంట్కి సింక్రనైజ్ చేయండి. ఎప్పుడు చాలానా పడితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి డిడక్ట్ అయ్యి పోయే విధంగా ఈరోజు బండి రిజిస్ట్రేషన్కి వచ్చినప్పుడే ఆ బండి యజమాని యొక్క ఖాతాను మీరు తీసుకోండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ను అటాచ్ చేయండి. ఏ బండి అయితే స్పీడింగ్ చేస్తుందో, ఏ బండి అయితే సిగ్నల్ జంప్ చేస్తుందో, ఏ బండికి అయితే చలానా పడుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ యజమాని అకౌంట్లో నుంచి నగదులు బదిలీ అయ్యే విధంగా మీరు ఈరోజు టెక్నాలజీని వాడుకోండి. బ్యాంకులను కూడా సమన్వయం చేసుకోండి. లేకపోతే ఈ ప్రమాదాలను నియంత్రించడం కష్టమవుతుంది. ఈరోజు నూతన ఛాలెంజెస్ని ఎదుర్కోవడానికి పోలీస్ వ్యవస్థని మనము బలోపేతం ఏ విధంగా చేసుకుంటున్నామో, ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రోడ్డు ప్రమాదాలను కూడా ఒక తీవ్రమైన సమస్యగా గుర్తించినాం. సరిహద్దుల్లో యుద్ధంలో చనిపోయే సైనికుల కంటే ఎక్కువ ఈరోజు రోడ్డు ప్రమాదాలలో చనిపోతున్నారు. మా సహచర మంత్రివర్గ మిత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి కుమారుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయి ఈ రోజుకి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఆ దుఃఖం నుంచి తేరుకోలేకపోయిండు. మరొక మా సహచర మంత్రివర్గ సభ్యుడు ఇండియా క్రికెట్ కెప్టెన్ మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ కొడుకు రోడ్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయిండు. వారు కూడా ఈ రోజుకు ఆ దుఃఖం నుంచి తేరుకోలేదు. బాబు మోహన్, కోట శ్రీనివాసరావు లాంటి సినిమా కళాకారుల పిల్లలు కూడా రోడ్ యాక్సిడెంట్లలోనే చనిపోయినారు. ఈ మధ్యకాలంలో పోలీసు అధికారులు కూడా రోడ్డు ప్రమాదాలలో చనిపోయినారు. రోడ్డు ప్రమాదం మన తప్పిదం వల్ల జరగకపోవచ్చు, ఎదురున్నవాడు తప్పు చేస్తే కూడా శిక్ష మనకు పడే అవకాశం ఉంది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం మైనర్లు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు వాహనం ఇవ్వడం వల్ల రోడ్డు మీదకి వచ్చి అవగాహన లేకుండా వాహనాలు తోలడం. రెండు, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్. వాళ్ళ సంతోషం కోసం, క్షణికమైన ఆనందం కోసం వాళ్ళు చేసే పార్టీలో లేకపోతే ఇతర వ్యసనాల వల్ల తాగి బండి నడపడం వల్ల వాళ్ళకే కాదు ఎదురుగుండే వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు ప్రమాదం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఈరోజు మైనర్లు బండ్లు నడపడం లేదా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో బండ్లు నడిపే వాళ్ళని నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత పోలీసుల మీద ఉన్నది. వాళ్ళ మీద కఠినంగా కూడా వ్యవహరించాలి.
वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने फिर कहा है कि साबिक़ा हुकूमत ने रियासत पर 8 लाख करोड़ रुपए के खर्च का बोझ डाल दिया था। वज़ीर आला ने पीर को तेलंगाना गज़ेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की साल 2026 के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा, रियासती हुकूमत हर महीने साबिक़ा हुकूमत के खर्च के लिए 22,000 करोड़ रुपए अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ वज़रा, वज़ीर आला और MLAs नहीं चलाते, बल्कि रियासत के 10.5 लाख मुलाजमीन का भी इसमें हिस्सा है। वज़ीर आला ने मुलाजमीन से मुखातिब होते हुए कहा, साबिक़ा हुकूमत ने उन्हें तनख्वाह कब अदा की जाती थी और आज तनख्वाह कब अदा की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने संक्रांति के तोहफे के तौर पर ऐलान किया कि मुलाजमीन को एक और DA यानी ग्रानी अलाउंस जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले ही 3 DA जारी कर चुकी है और उन्होंने एक और DA की इजराई की फाइल पर दस्तखत कर दी है। मुलाजमीन को उनकी सेहत के सिलसिले में मुकम्मल इंश्योरेंस फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत मुलाजमीन के लिए हादसाती इंश्योरेंस फराहमी के लिए 1 करोड़ रुपए का मंसूबा रखती है। वज़ीर आला ने मुलाजमीन से कहा कि अपने अवाम को बेहतरीन हुक्मरानी फराहम करें। हुकूमत आपके मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा ताउन करेगी। जल्द ही मुलाजमीन के रिटायरमेंट के मराहत के मसाइल की भी यकसुई की जाएगी। मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ हुकूमत ने वजीफायाब सरकारी मुलाजमीन के लिए 3% से ज़्यादा ग्रानी अलाउंस राहत देने का ऐलान किया और इसकी अदायगी के लिए हुक्मनामा नंबर 3 जारी कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संदीप कुमार सुल्तानिया की दस्तखत से जारी इस हुक्मनामे का इतलाक उन तमाम मुलाजमीन सरकारी जो 1 जुलाई 2018 के बाद से वजीफ़े हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हुए हैं उन पर होगा और जनवरी 2026 के वजीफे के साथ जो फरवरी 2026 में वाजिबुल अदा होंगे, साथ बकाया रकम राहत 3 मुख्तलिफ अक़सात में अदा की जाएगी। वजीफ़ायाब मुलाजमीन सरकार को यह रकम मई बकायाजात रात सरकारी खजाने से जारी होगी। बलदियात व ज़िला परिषद के वजीफ़ायाब मुलाजमीन को यह रकम उनके पेंशन फंड से, यूनिवर्सिटी के सबुकदोश मुलाजमीन को उन्हें अलॉट करदा ग्रांट से अदा की जाएगी। रियासती वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, रजिस्ट्रेशन महकमे में अहम इस्लाहात पर अमल किया जा रहा है। रियासती वज़ीर ने कहा कि गरीबों और सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि गैर समाजी अनासिर और जबरन क़ाबज़ीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पर बोझ डाले बगैर इंटीग्रेटेड इमारतें तामीर की जाएंगी। रियासती वज़ीर ने पीर को मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के कुकटपल्ली में इंटीग्रेटेड सब रजिस्ट्रार ऑफिस का संग बुनियाद रखा। वज़ीर माल ने कहा, रियासत भर में मरबूत सब रजिस्ट्रार दफातर को मरहलावारी तौर पर जदीद तरीन सहूलतों के साथ तामीर किया जा रहा है। पहले मरहले में आउटर रिंग रोड के अंदर, दूसरे मरहले में ज़िला मराकज़ और तीसरे मरहले में इंतखाबी मराकज़ में मरबूत इमारतें तामीर की जाएंगी। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि महकमे रजिस्ट्रेशन आमदनी का जरिया नहीं बल्कि खिदमत का मरकज़ बने। रियासती वज़ीर ने अवाम से मेडारम यात्रा में भी शिरकत की अपील की। रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने पीर को रंगारेड्डी जिले के चेवल्ले का दौरा किया। हल्के के मरकज में 17.5 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों के HFC को 100 बिस्तरों के इलाकाई हॉस्पिटल में अपग्रेड करने का संग बुनियाद रखा गया। हल्के के दौरे के दौरान 95 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का भी आगाज किया गया। रियासती वज़रा ने ज़ेरे इलाज मरीजों से मुलाकात की, उनके इलाज, डॉक्टर्स की कारकर्दगी और हॉस्पिटल में पहुंचाई जा रही सहूलतों से मुतालिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली के यादैया रुकन पार्लियामेंट कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे क़बायली बहबूद की तरफ से तैयार किए गए मेदारम यात्रा के ब्रोशर और पोस्टर को जारी किया। इस मौके पर रियासती वज़रा ए लक्ष्मण, कोंडा सुरेखा, सीतक्का के अलावा अरकान मुखरना मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सुदूर मौजूद थे। रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने वज़ीर आला को सालाना श्री जोगुलाम्बा अमावारी तकरीब के लिए मदऊ किया। इस मौके पर मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पुजारी मौजूद थे। ये उत्सवालों 19 से 23 जनवरी को मुनक्किद होगा। कोंडा सुरेखा ने वसंत पंचमी महा उत्सव में भी शिरकत के लिए वज़ीर आला को दावतनामा पेश किया। मंदिर के जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। वसंत पंचमी तकारीब 21 से 23 जनवरी तक मुनक्किद होंगी।
खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंदर, रुकन असम्बली राज ठाकुर, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने भी वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए खैरताबाद में मुनाकिद होने वाली संक्रांति तकारीब में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर पी जनार्दन रेड्डी को उनके यौम पैदाइश पर खराज पेश किया है। वज़ीर आला ने खैरताबाद में वाक़े पीजीआर के मुजस्समे पर फूल डाले। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस के लीडर्स भी मौजूद थे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने श्री वेंकटेश्वरा स्वामी के सालाना ब्रह्मोत्सव के इंतजामात का जायजा लिया। रियासती वजीर ने बताया कि करीमनगर पुराना बाजार ब्रह्मोत्सव जारिया माह की 23 तारीख से शुरू होगा। रियासती वजीर ने करीमनगर के अवाम से इस ब्रह्मोत्सव में अफराद खानदान के साथ शिरकत की अपील की। उन्होंने अहदेदारों को ब्रह्मोत्सव के लिए मौसर इंतजामात की भी हिदायत दी। पूनम प्रभाकर ने उत्सव के लिए चंदा देने वालों से इजहार तशक्कुर किया। उत्सव के दौरान ताम का भी इंतजाम किया जाएगा। रियासती वजीर सीदर बाबू ने आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए सीदर बाबू ने कहा, जो ओहदेदार हुकूमत के लिए और अवाम के लिए गैर जानिबदारी के साथ काम करते हैं, उनसे मुताल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और खबरें नहीं फैलाई जानी चाहिए। यह हमारी तहजीब नहीं है। रियासती वजीर ने मीडिया और सोशल मीडिया के जिम्मेदारों और हैंडलर से अपील की, इस तरह की गुमराहकुन खबरों की तशहीर से परहेज करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को प्रजा भवन में बाला भरोसा और प्लामम स्कीमों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुजव्वज़ा बलदी और कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ट्रांसजेंडर्स यानी कि मुखन्निसों को भी कोऑप्शन मेंबर के तौर पर नामजद किया जाना चाहिए ताकि ट्रांसजेंडर्स अपने मसाइल को उठा सकें। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि आने वाले काबीना के इजलास में इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर माँ बाप को उनके बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर तनहा छोड़ देते हैं तो उन सरकारी मुलाजमीन की 10 से 15% तनख्वाह काट दी जाएगी। सरपरस्तों के अकाउंट में यह रकम जमा कराई जाएगी। असम्बली के बजट इजलास में इस सिलसिले में बिल भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदीन की शादी के लिए 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। तालीम और मुलाजमतों में मौजूदीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इंसानी हमदर्दी के नुक्ता नज़र से काम करेगी ताकि माजूर अफराद माशरे में इज़्ज़त और नफ्स के साथ खड़े हो सकें। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने मौजूदीन के लिए फ़ंड्स भी मख्तस किए हैं। खेलों में मौजूदीन की हौसला अफजाई के लिए पैरा ओलंपिक्स में तमगे जीतने वालों को मुलाजमत भी फराहम की गई है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, कांग्रेस नहीं चाहती कि तरक्की और बहबूद के समरान अवाम की दहलीज तक पहुंचे। केटीआर ने कहा, अगर एक भी जिले को खत्म किया गया तो कांग्रेस के खिलाफ जिद्दोजहद जरूरी है। केटीआर ने महबूबनगर में नए सरपंचों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने अजला को खत्म करने की बात कही। अगर अजला को खत्म किया गया तो कांग्रेस पार्टी का जवाल यकीनी है। रेवंत रेड्डी जो खुद को महबूबनगर का बेटा होने का दावा करते हैं, जानबूझकर पालमरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट में रुकावट डाली है। 30,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से जब 90% काम मुकम्मल हो गया, उसका 10% काम मुकम्मल करने के लिए रेवंत रेड्डी रुकावट डाल रहे हैं। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू को नाराज करना नहीं चाहते। 17 तारीख को वजीर आला पालमरू आ रहे हैं, उन्हें इन सवालों का जवाब देना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मुस्तकबिल में मुस्लिम खातून के वजीर आजम बनने के रिमार्क पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी चिरागपा हैं। किशन रेड्डी ने गैर जरूरी बांग्लादेश और पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। अगर मुल्क में हिंदू नहीं होंगे तो जमहूरियत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम खातून के वजीर आजम बनने का बयान देकर अवाम को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। तेलंगाना महकमे जेल की डीजी डॉक्टर सोमिया मिश्रा आईपीएस ने पीर को महकमे की सालाना रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर सोमिया मिश्रा ने बताया कि साल 2024 में 34,811 ज़ेरे समात महरूसीन थे, जबकि साल 2025 में तादाद 36,627 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 2025 में ज़ेरे समात महरूसीन की तादाद में 5.21% का इजाफा हुआ।
انہوں نے بتایا کہ سال 2024 میں جملہ 3229 محروسین کو مختلف کیسز میں قصوروار قرار دیا گیا، جبکہ سال 2025 میں 5856 افراد کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سزا بھی سنائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2024 میں پوکسو کے تحت 3750 ملزمین جیل میں رہے، سال 2025 میں 4176 افراد پر پوکسو کے تحت جیل میں رہے، NDPS کے تحت 6311 2024 میں جیل میں رہے، جبکہ 2025 میں تعداد 7040 رہی۔ قتل کے 2754 ملزمین جیل میں رہے، 2025 میں تعداد 3260 ہوئی۔ خواتین پر مظالم کے سلسلے میں 2024 میں 3305 ملزمین جیل میں رہے، جبکہ سال 2025 میں تعداد 3478 رہی۔ سائبر کرائم کے 757 افراد 2024 میں جیل میں آئے، جبکہ سال 2025 میں تعداد 1784 رہی۔ پہلی بار جرم کرنے والے 36579 افراد 2024 میں جیل میں آئے، جبکہ 2025 میں تعداد 40090 تک پہنچ گئی۔ 2025 میں 6573 ملزمین کو قانونی امداد فراہم کی گئی، جس کے تحت 3634 افراد جیل سے رہا ہوئے۔ 2025 میں 44 جیل عدالتیں منعقد کی گئیں، 1558 کیسز کی سماعت ہوئی، 985 محروسین رہا کیے گئے، 58 محروسین نے 18,66,000 روپے کا قرض بھی حاصل کیا۔ 2025 میں 301 محروسین کو پیرول دی گئی۔ سومیا مشرا نے بتایا کہ جیل میں مختلف پروگرامز بھی منعقد کیے گئے۔ محروسین کو ویلڈنگ، ٹیلرنگ، الیکٹرک وائرنگ، پلمبنگ اور دوسرے کورسز کی تربیت دی گئی۔ 4615 محروسین نے اس سے استفادہ کیا۔ نیک کے تحت سنکلپ اسکیم کے ذریعے بھی محروسین نے استفادہ کیا۔ ووکیشنل کورسز، کارپینٹری، اسٹیل یونٹ، پرنٹنگ پریس، ٹیلرنگ اور دوسری تربیت بھی دی گئی۔ محکمہ جیل کی طرف سے 32 پیٹرول پمپ چلائے جا رہے ہیں، جس میں 212 افراد کام کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے اتوار کی رات گلزار ہاؤس اور کالی کمان کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے پتن اور مانجے کے دکانداروں سے ملاقات کی۔ دکانداروں نے بتایا کہ پولیس کی طرف سے مسلسل تلاش مہم انجام دی جا رہی ہے۔ میر ذوالفقار علی نے اس موقع پر زون کے اعلیٰ پولیس عہدیدار سے رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ مارکیٹ کئی سالوں سے یہاں پر قائم ہوتا رہا ہے، یہاں پر چینی مانجے کی فروخت نہیں کی جاتی۔ میر ذوالفقار علی نے دکانداروں کو بھی تاکید کی کہ چینی مانجے کی فروخت سے گریز کریں، ٹریفک کی مؤثر بحالی کے لیے تعاون کریں۔ کل ہند صنعتی نمائش شروع ہوئے 2 ہفتے پورے ہونے جا رہے ہیں، لیکن نمائش میں بہت زیادہ گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ اتوار کے دن کافی ہجوم دیکھا گیا، لوگوں میں خریداری کرنے اور تفریح منانے کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ اب تو مشاہدین نمائش کا دور دراز کے علاقوں سے اور دوسری ریاستوں سے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ نمائش میں خواتین ملبوسات اور گھریلو ضروریات کے ساز و سامان میں دلچسپی لی جا رہی ہے۔ مرد حضرات بھی ریڈی میڈ ملبوسات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ زیادہ تر خواتین کا ہجوم چھوٹے بچوں کے ملبوسات کے سٹالز پر دیکھا گیا۔ ایک تو بچے اپنے کپڑوں کے لیے ماں باپ سے خریدنے کی ضد کرتے ہیں، تو دوسری طرف والدین بھی بچوں کی ضد کو پورا کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود نمائش دیکھنے والوں کا ہجوم ہر سٹال پر برابر موجود تھا۔ کوئی سٹال ایسی نہیں تھی جہاں گاہک اپنی پسند کی اشیاء تلاش کر رہے ہوں۔ 3-4 گھنٹے نمائش میں گھومنے کے بعد مشاہدین کو سستانے کے لیے ریسٹورنٹ کا سہارا لیتے ہیں، جہاں ہر قسم کی ڈش دستیاب رہتی ہے۔ نمائش کے باہر کے گیٹس کے پاس نئے آنے والوں کا ہجوم ٹکٹ لینے میں مصروف دیکھا گیا۔ حیدرآباد پولیس کی طرف سے چینی مانجے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کالا پتھر پولیس اور ٹاسک فورس ویسٹ زون نے ایک شخص کو گرفتار کرتے ہوئے چینی مانجے کے 345 بابن کو ضبط کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایڈیشنل کمشنر پولیس لا اینڈ آرڈر ساؤتھ رین تفسیر اقبال نے بتایا، حالیہ چند دنوں کے دوران چینی مانجے سے نقصانات ہوئے ہیں اور پولیس اس کے خلاف کریک ڈاؤن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تفسیر اقبال نے بتایا کہ مانجا انسانوں اور پرندوں کے لیے انتہائی مضر ہے۔ بہادر پورے میں ایک بچی چینی مانجے کی زد میں آ کر زخمی ہوئی، جبکہ امبر پیٹ میں بھی ایک شخص زخمی ہوا۔ اسے موت کا دھاگا اور کلر مانجا بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر اقبال نے کہا، سنکرانت خوشی کا تہوار ہے اور اسے اس طرح سے منایا جائے کہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ پولیس عہدیدار نے سرپرستوں سے اپیل کی کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے مانجے کے استعمال سے باز رکھیں۔ جس شخص کو 345 بابن کے ساتھ گرفتار کیا گیا، اس کی شناخت محمد شاہزیب کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ شاہزیب ہریانہ کے وکرم مہتا سے مانجا حاصل کیا تھا۔ کالا پتھر کی دکن بیکری بشارت نگر کے پاس شاہزیب اس مانجے کی ایک بابن 2000 روپے میں فروخت کر رہا تھا۔ 6,90,000 روپے کا مانجا ضبط کیا گیا ہے۔
बोराबंडे में कत्ल का एक और सनसनीखेज वाकया पेश आया है। इतवार की रात एक खातून की लाश पाई गई। मुकामी अवाम ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। तफसीलात के मुताबिक फातिमा और जहीर की मुलाकात बंजारा हिल्स के एक पब में हुई। फातिमा ने जब अपनी मुलाजमत दूसरे पब में शुरू की, जहीर उससे मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बताया यह गया कि मकतूला ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू किया था। इसी बात को लेकर जहीर बरहम था और फिर उसने इतवार को शाम फातिमा को बातचीत के लिए बुलाया और चाकू से वार करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इतला है कि पुलिस ने जहीर को तहवील में लिया है। पुलिस टीम को भी मुकामी वाक़े पर देखा गया। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। बंडलागुड़ा पुलिस के हदूद में गांजे की फरोख को नाकाम बनाते हुए 2 किलो गांजा जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने इमरान और मुनव्वर को मुश्तबा हालत में तहवील में लेकर तलाशी ली तो 2 किलो गांजा बरामद हुआ। दोनों ने बताया यहाँ पर एक शख्स का कहना था कि वो गांजा उड़ीसा के साकिन पप्पी भाई के पास से हासिल करते हुए उसे हैदराबाद में फरोख्त कर रहे थे। मुनव्वर पैडर नहीं बल्कि गांजे का सारिफ बताया गया। कोकटपल्ली के अर्जुन थिएटर में चिरंजीवी की फिल्म के मुशाहिदे के दौरान एक शख्स हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त रिटायर्ड ASI आनंद कुमार की हैसियत से की गई। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। आनंद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह वाक़या पीर की सुबह 11:30 बजे शो के दौरान पेश आया। तांडूर पुलिस ने DSP नरसिंह यादव की निगरानी में सूती आलूगी का बायस बनने वाले साइलेंसर को नाकारा बनाया है। पुलिस के मुताबिक 30 बुलेट गाड़ियों के साइलेंसर को पुलिस ने जब्त किया था। जब्त की गई गाड़ियों को अदालत में पेश किया गया था और इन गाड़ियों के साइलेंसर को नाकारा बनाया गया। पुलिस ने इंतबाह दिया कि अगर कोई इस तरह के साइलेंसर का इस्तेमाल करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मारूफ शख्सियत अलहाज मोहम्मद मोहसिन अली उर्फ अफजल साहब मॉडर्न टेलर शालीबंडे का हफ्ता 10 जनवरी को इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा इतवार 11 जनवरी को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद खुबा मुराद महल तालाब कट्टा मीर जुमले में अदा की गई। तदफीन दरगाह हजरत शाहराज खत्ताल रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज अमल में आई। फातिहा सिवम मंगल 13 जनवरी को बाद नमाज असर मस्जिद खुबा मुराद महल में मुकर्रर है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन। जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ट्रैफिक शऊर बेदारी मुहिम जिंदा आया हूं का वजीर आला ने किया आगाज। चालानात से गुरेज का पुलिस को मशवरा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। रियासती मुलाजमीन को संक्रांति का तोहफा, 3% से ज्यादा ग्रानी अलाउंस का ऐलान। जियो जारी, मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ रुपए हादसाती इंश्योरेंस का मंसूबा। मसाइल की यकसुई मेरी जिम्मेदारी, वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रजिस्ट्रेशन महकमे में अहम इस्लाहात पर अमल। जबरन अराजी काबजीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमे रजिस्ट्रेशन आमदनी का जरिया नहीं बल्कि खिदमत का मरकज बने। कोकटपल्ली में इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रार ऑफिस का संग बुनियाद। तेलंगाना के महकमा जेल ने साल 2025 की सालाना रिपोर्ट की पेश। जेर समात महरूसीन की तादाद में इजाफा। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।